Dear students, Assalamu alaikum. Today's topic is product matrix that we started in our last lecture. Before proceeding to next concepts, further concepts of the product matrix, we recap the last lecture. In our previous lecture, we started our discussion with measurement, that why we need to measure, and measurement has direct relation with the quality assessment. And we discussed that in almost every engineering domain except software engineering, they are quite rich in measurement. They have formulas and different laws that are quite validated and authenticated. So when we talk about software engineering domain, it's still young, and we don't have as rich as other engineering domains have the data set for the measurement, but still we have metrics, and we can apply those metrics directly or indirectly to assess the quality. So measurement is like key element for the quantitative assessment of the software quality. We started with the generic framework of product matrix, that what are the key activities, key elements of the product matrix when we talk in journal. So we discussed three different concepts, or we may say somehow same concepts, but still there is difference in their meaning. So we try to understand the difference between measurement and metrics. And metric is actually the lowest level, that is the direct indication of the specific attribute, and through metrics we move towards measure, and set of measure is actually the overall process of measurement. And then we discuss 5 key activities, journal activities, that are involved in this whole process. The first one is the formulation of metrics. We try to come up with the metrics that are measurable, and once they are proposed, we based on those metrics we collect the data, we gather the data, and then we apply those metrics on that data. And third key activity is the analysis, and the analysis is actually the computation of those attributes, and somehow we apply mathematical tools or formulas for the analysis. And then fourth key activity is the interpretation, and interpretation is actually to assess or evaluate based on the analysis. So how you see the product quality based on the analysis. And the fifth key activity is the feedback, and feedback is in fact recommendations to the organization or the project team, that how they can improve the quality. So then we discussed key principle for the matrix characterization and validation. And the first thing that we need to understand when we are going to propose matrix, so metric must be meaningful in terms of mathematics. So when we go for the metric should represent some value that is meaningful, like metric can be in the form of 0 or 1. So 0 is like totally absence of something, 1 is the completeness or the presence. And similarly we need to understand that we cannot apply metrics based on toy examples to the large scale projects. Before applying to the large scale projects, we need to validate those metrics with different type of application, with different sizes of project, and we also need to validate those in terms of mathematics or some other validation techniques. So once validated with different application, with the different variations in different projects, then we can actually publish or can actually use widely.
And then we discussed some metrics for requirements model. We said that at every stage of the development we may have metrics. So same is true for the requirements phase, and when we are dealing with the requirements, what kind of metrics we have. So we discussed one of those possible metrics that is called function based metrics, and in function based metrics we said that these kind of metrics give us indication or the estimation about the size of the software and size of the modules or the components. And we discussed different metrics like a number of total requirements, number of functional requirements, number of non-functional requirements. So those basic metrics help us to come up with some solid estimation about the size. And then we discussed about some metrics for the requirement specification quality. We discussed the key characteristics of requirement specification when we say that these requirements are well specified. So we said that it must be consistent, there must be a traceability element or the characteristic for the requirements, and so on. And then we discussed some metrics for the requirement specification, in which we discussed the completeness of the requirements and the specification or specificity of the requirements. And then we discussed some metrics about the design model, and in design model we discussed architectural design metrics. We said that how we can measure the complexity, the structural complexity, the data complexity, and the overall complexity of the design model. And similarly we discussed some metrics for object-oriented design. In fact, we started with the object-oriented design, and we discussed some quality or characteristics of the object-oriented design. So today we start with the metrics for object-oriented design. Number of metrics are proposed for class for the class or object-oriented design. Here we are discussing some metrics that are directly related to the class, because class is the key component in object-oriented design. So first metric is weighted methods per class. What is it? In this metric we try to calculate the complexity, a number of methods with some specific complexity like C1, C2 to Cn, and then we actually calculate those actually sum the complexity, and that complexity reflects the effort required to the test that specific class. And if this complexity increases, it is quite obvious, अगर आपकी complexity बढ़ती जा रही है class की, उसके अंदर number of methods बढ़ रहे हैं with the variety of complexities, तो definitely उसकी जो testing है उसकी एफर्ट भी बढ़ जाएगी, उसके लिए ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी टू टेस्ट दैट स्पेसिफिक क्लास, और उसका जो रीयूज़ है दैट विल आल्सो बी लिमिटेड. तो जो नंबर ऑफ मेथड्स हैं जो कि हमने कैलकुलेट करने हैं फॉर दिस मेट्रिक, अपेरेंटली इट सीम्स वेरी सिंपल, लेकिन ऐसा नहीं है. वी नीड सम कंसिस्टेंट काउंटिंग अप्रोच टू कैलकुलेट द मेथड्स, एंड वंस we have that consistent approach, then we can actually effectively use this metric. तो जो दूसरा जो metric है that is depth of the inheritance tree, और depth of inheritance tree जो है हमें understanding मिल रही है. पहले भी हमने discuss किया architecture को कि depth is distance from root to specific node. तो वो जो length है उसको मेजर करते हैं, और वो जैसे जैसे बढ़ती चली जाती है लेंथ, वो जो डेप्थ बढ़ती चली जाती है, तो इट मींस के जो लोअर लेवल क्लासेस जो हैं दे आर इनहेरिटिंग मोर मेथड्स. यही हमें पता चल रहा है, इनहेरिटेंस बढ़ रही है. लेकिन अगेन एक तरफ से तो ये अच्छी बात है, इट इज़ क्वाइट गुड दैट वी मे यूज मल्टीपल मेथड्स, इनफैक्ट रीयूज मल्टीपल मेथड्स. लेकिन अगेन ये हमें पुश करता है, हमें ये लेके जाता है टूवर्ड्स डिज़ाइन कम्प्लेक्सिटी. जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगी इनहेरिटेंस ट्री की, जो डिज़ाइन है वो कम्प्लेक्स होता जाएगा, और कम्प्लेक्स डिज़ाइन
इसको टेस्ट करने के लिए डेफिनेटली हमें ज़्यादा एफर्ट्स रिक्वायर्ड होंगी। और फिर अगेन एफर्ट्स जो हैं, जो ये हमने पहले भी मीट्रिक डिस्कस किया, एफर्ट उसको कन्वर्ट करना कोड के अंदर, फिर उस कोड को टेस्ट करना, तो ये हर लेवल के ऊपर जो एफर्ट है वो बढ़ जाएगी। अब हम बात करते हैं एक और मीट्रिक की, दैट इज नंबर ऑफ चिल्ड्रन। और नंबर ऑफ चिल्ड्रन मीन्स के जो भी इमीडिएट सबऑर्डिनेट क्लासेस हैं ऑफ पेरेंट क्लास, दैट आर ऑल कॉल्ड द चिल्ड्रन। और जैसे जैसे नंबर ऑफ चिल्ड्रन बढ़ते हैं ऑब्वियसली रीयूज बढ़ता है, लेकिन इसके साथ साथ क्या है कि अगर प्रॉपरली आपने डिज़ाइन नहीं किया चाइल्ड क्लासेस को, चिल्ड्रन क्लासेस को, तो डेफिनेटली जो आपकी पेरेंट क्लास की एब्स्ट्रैक्शन है वो डिस्टर्ब होगी, दैट विल बी डाइल्यूटेड। ठीक है, तो अगेन नंबर ऑफ चिल्ड्रंस बढ़ेंगे, इमीडिएट जो क्लासेस हैं सबऑर्डिनेट वो बढ़ेंगी, तो आपकी टेस्टिंग एफर्ट जो है वो इंक्रीज होगी। लेकिन अगेन हम बात कर रहे हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिज़ाइन मैट्रिक्स। अभी डिज़ाइन के ऊपर फोकस है कि डिज़ाइन मॉडल को कैसे हम एवेलुएट कर सकते हैं, कैसे असेस कर सकते हैं। तो ये डिज़ाइन के ऊपर जो हमारे मॉडल्स हैं, ये मैट्रिक्स हमें वहाँ पे हेल्प आउट करते हैं टू मेजर द डिज़ाइन कम्प्लेक्सिटी। और यही डिज़ाइन कम्प्लेक्सिटी आगे हमें कोड पे भी और टेस्ट के लेवल के ऊपर भी अफेक्ट करेगी। नेक्स्ट मैट्रिक इज कपलिंग बिटवीन क्लास ऑब्जेक्ट्स। और कपलिंग को पहले भी डिस्कस किया। कपलिंग इज कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन और कोलैबोरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स। और जब ये कपलिंग बढ़ती है तो रीयूजेबिलिटी जो है वो डिक्रीज होती है, क्योंकि डिपेंडेंसी बढ़ती है। डिफरेंट जब ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के साथ कपल्ड होंगे तो डेफिनेटली आप उनको उस तरह से रीयूज नहीं कर पाएंगे। और फिर अगेन जब कपलिंग बढ़ती है तो इसकी जो जब इसको टेस्ट करने की एफर्ट है वो भी डेफिनेटली बढ़ती है। और इसी तरह से अगर हमें इसके अंदर मॉडिफिकेशन करनी है तो मॉडिफिकेशन चेंज जो है इस तरह के ऑब्जेक्ट्स के अंदर, इस तरह की क्लासेस के अंदर जो है वो मुश्किल होगी। तो वो इसको कंसीडर करना चाहिए हमें डिज़ाइन टाइम के ऊपर कि उसकी कम्प्लेक्सिटी क्या है। और फिर इसी तरह से जो रिकमेंडेड प्रैक्टिस है दैट इज वी शुड कीप इट लो एज पॉसिबल। तो हमें ज़्यादा डिज़ाइन कम्प्लेक्सिटी की तरफ नहीं जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं रिस्पॉन्स फॉर ए क्लास। इसको RFC मीट्रिक भी कहते हैं। और ये हमें बताता है नंबर ऑफ मेथड दैट आर पोटेंशियली एग्जीक्यूटेड इन रिस्पॉन्स टू द मैसेज रिसीव्ड बाय सम स्पेसिफिक क्लास ऑब्जेक्ट। तो वो जो मेथड जो पोटेंशियली एग्जीक्यूट हो रहे हैं किसी भी मैसेज के रिस्पॉन्स में, उसका काउंट जो है दैट इज रिस्पॉन्स फॉर ए क्लास। और जब ये नंबर भी बढ़ता है डेफिनेटली आपकी डिज़ाइन कम्प्लेक्सिटी भी बढ़ रही है और टेस्टिंग एफर्ट भी इससे अफेक्ट होगी, बढ़ेगी। और इसी तरह से एक और मीट्रिक दैट इज लैक ऑफ कोहेजन इन मेथड्स, इट इज LCOM। और ये क्या है कि नंबर ऑफ मेथड्स दैट एक्सेस वन आर मोर ऑफ द सेम एट्रीब्यूट्स। कोई लेट्स से एक मेथड है और हर मेथड जो है मल्टीपल मेथड्स हैं और सारे मेथड जो हैं वो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को जो है एक्सेस कर रहे हैं या मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो इस केस के अंदर ये LCOM जो है ये 0 होगा। अब सपोज के 4 मेथड्स हैं जो कि कॉमन एट्रीब्यूट्स के साथ डील कर रहे हैं, तो इस केस के अंदर जो LCOM होगा दैट वुड बी 4 के 4 डिफरेंट मेथड्स एक ही सेम जो एट्रीब्यूट्स हैं उनके साथ डील कर रहे हैं। और LCOM जो है हाई होगा, ये नंबर बढ़ेगा तो डेफिनेटली डिज़ाइन कम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। तो इसलिए आइडियली इसको भी क्या होना चाहिए, मिनिमम लो होना चाहिए। अब हम कुछ कंपोनेंट लेवल डिज़ाइन मैट्रिक्स की बात करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से हटके, जो हमारे पास कन्वेंशनल कंपोनेंट्स होते हैं। और उसके अंदर हम क्या करते हैं, जो इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कंपोनेंट की उसकी बात करते हैं। और उसके अंदर जो है क्या हमारे पास पॉसिबल मैट्रिक्स हैं उसको डिस्कस करते हैं। इसको 3 C's मैट्रिक्स भी कहते हैं। अभी इसको देखते हैं कि ये क्यों कहते हैं। द फर्स्ट वन इज कोहेजन मैट्रिक्स। तो कोहेजन से रिलेटेड मैट्रिक्स क्या हो सकते हैं, जब हम इन जनरल एक कन्वेंशनल कंपोनेंट की बात करते हैं, वो कुछ भी हो सकता है, कोई प्रोग्राम, कोई कोड हो सकता है। डेटा स्लाइस
और डेटा स्लाइड्स क्या होता है कि दैट इज बैकवर्ड वॉक थ्रू ऑफ थ्रू ए मॉड्यूल टू लुक डेटा वैल्यूज। जो आप जब एक इंस्पेक्शन करते हैं, वॉक थ्रू करते हैं उस मॉड्यूल के अंदर जो डेटा वैल्यूज के साथ आप डील कर रहे हैं, तो वो डेटा वैल्यूज जो हैं दैट इज डेटा स्लाइस। और इसी तरह से इसका दूसरा मेट्रिक क्या है, डेटा टोकन्स। और डेटा टोकन्स क्या है, इन सिंपल वर्ड्स वेरिएबल्स, जिनके थ्रू वो डेटा आप जिसके साथ डील कर रहे हैं। और फिर इसी तरह से ग्लू टोकन्स क्या है, ग्लू टोकन्स जो है वो डेटा टोकन्स लाइज ऑन डेटा स्लाइस, जहां जहां पे डेटा के साथ मैनिपुलेशन हो रही है और वहां पे जो वेरिएबल्स हैं जिनको मैनिपुलेट किया जा रहा है उनको जो है हम ग्लू टोकन्स कहते हैं। इसी तरह से सुपर ग्लू टोकन्स एक और हमारे पास मीट्रिक है, और ये क्या बताता है, जो भी डेटा टोकन जो है जो कॉमन है, जो कि हर डेटा स्लाइस में अवेलेबल है, दैट आर कॉल्ड द सुपर ग्लू टोकन्स। और इसी तरह से एक स्टिकीनेस मीट्रिक है, और स्टिकीनेस जो है दैट इज इन फैक्ट द रिलेटिव स्टिकीनेस ऑफ द ग्लू टोकन दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ डेटा स्लाइड्स दैट इट बाइंड्स। तो ये जो डिफरेंट मीट्रिक्स हैं ये आपको कोहेजन के बारे में बताते हैं कि कोई स्पेसिफिक कंपोनेंट जो है वो कितना कोहेसिव है, और इससे आपको आइडिया मिल सकता है। ऑल्दो के पहले भी हमने कहा कि जो हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर जो मैट्रिक्स हैं और जो डिफरेंट फेजेस के ऊपर जो प्रपोज किए गए हैं, स्टिल इतने थॉरो और इतने जो है वो डायरेक्ट मैट्रिक्स नहीं है, लेकिन स्टिल एक अच्छा हमें आइडिया प्रोवाइड करते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ जो मैट्रिक्स है दैट इज कपलिंग मैट्रिक्स। और कपलिंग मैट्रिक्स के अंदर जो है वो तीन तरह की कपलिंग के मैट्रिक्स है। द फर्स्ट कपलिंग टाइप इज डेटा एंड कंट्रोल फ्लो कपलिंग। और डेटा और फ्लो कपलिंग के अंदर हम देखते हैं जो मैट्रिक्स हैं दैट इज द फर्स्ट वन इज DI, एंड DI इज एक्चुअली द नंबर ऑफ इनपुट डेटा पैरामीटर्स, सिंपली जो डेटा पैरामीटर्स हैं आपके इनपुट के। सेकंड वन इज CI इज इन फैक्ट द नंबर ऑफ इनपुट कंट्रोल पैरामीटर, जो कि इनपुट कंट्रोल से रिलेटेड है। और फिर बिल्कुल इसी तरह से DO इज नंबर ऑफ आउटपुट डेटा पैरामीटर्स। और जैसे प्रीवियस मीट्रिक हमने डिस्कस किया उसी तरह से CO जो है वो आउटपुट कंट्रोल डेटा जो है, जो कंट्रोल पैरामीटर्स हैं वो उनका जो नंबर है, जो उनका काउंट है, उसको प्रेजेंट करता है। और फिर इसी तरह से दूसरी जो टाइप की कपलिंग है दैट इज ग्लोबल कपलिंग, और इसके अंदर हम ग्लोबल वेरिएबल्स के साथ डील कर रहे हैं। GD इज द मीट्रिक दैट रिप्रेजेंट द ग्लोबल वेरिएबल्स यूज्ड एज डेटा। और GC मीट्रिक है जो कि हमें काउंट देता है, काउंट प्रोवाइड करता है ऑफ ग्लोबल वेरिएबल्स यूज्ड एज कंट्रोल। और फिर इसी तरह से तीसरी जो टाइप की कपलिंग है दैट इज इन्वायरमेंटल कपलिंग। और इन्वायरमेंटल कपलिंग जो है इसके अंदर दो मीट्रिक्स हैं, दो वेरिएबल्स भी कह सकते हैं। द फर्स्ट वन इज W इज द नंबर ऑफ मॉड्यूल्स दैट आर कॉल्ड बाय सम स्पेसिफिक कंपोनेंट, और R इज द नंबर ऑफ मॉड्यूल्स कॉलिंग दैट स्पेसिफिक मॉड्यूल आर द कंपोनेंट। तो ये नंबर जो है ये हमें इन्वायरमेंटल कपलिंग के बारे में बताते हैं। तो अब जब ओवरऑल कपलिंग आपने कैलकुलेट करनी है, कंप्यूट करनी है फॉर सम स्पेसिफिक कंपोनेंट R मॉड्यूल, तो वो क्या होगा, उसके लिए K और M है। और K आगे M को देखें, हमने फर्दर जो है डिस्क्राइब किया दैट इज DI प्लस A इंटू CI। तो ये A, B और C एंड K इनको एम्पेरिकली जो है हमने फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट करना होता है। ये कुछ कांस्टेंट नंबर्स हैं और इसके थ्रू फिर आप क्या कर सकते हैं, टोटल कपलिंग जो है, ओवरऑल कपलिंग, वो कैलकुलेट कर सकते हैं। जो तीसरी टाइप के हमारे पास मैट्रिक्स हैं दैट आर कम्प्लेक्सिटी मैट्रिक्स। और इसके अंदर हमारे पास जो एक कॉमन मैट्रिक है, वेल नोन मैट्रिक है, दैट इज साइक्लोमेटिक कम्प्लेक्सिटी। और साइक्लोमेटिक कम्प्लेक्सिटी रिप्रेजेंट करती है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट लॉजिकल पाथ्स जो एक कंपोनेंट के अंदर अवेलेबल हैं। और फिर और भी डिफरेंट हमारे पास मैट्रिक्स हैं जो कि इसी मैट्रिक की वेरिएशन है साइक्लोमेटिक कम्प्लेक्सिटी की। तो अब कोहेजन, कपलिंग और कम्प्लेक्सिटी मैट्रिक्स, इसीलिए इसको 3 C's मैट्रिक्स कहा जाता है, जो कि हमें
प्रोवाइड करते हैं क्वांटिटेटिव असेसमेंट फॉर ट्रेडिशनल कंपोनेंट्स। अब हम बात करते हैं कुछ ऑपरेशन ओरिएंटेड मैट्रिक्स की या मॉड्यूल ओरिएंटेड मेथड ओरिएंटेड मैट्रिक्स की। और उसके अंदर जो है फर्स्ट आपके पास जो मैट्रिक है दैट इज एवरेज ऑपरेशन साइज। और एवरेज ऑपरेशन साइज प्रेजेंट करता है नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड्स और नंबर ऑफ मैसेज सेंट बाय द दैट स्पेसिफिक मेथड। और फिर इसके अगर देखें कि ये नंबर ऑफ मैसेज इंक्रीज करता है तो ये एक हमें हिंट मिल रहा है इससे। अगर ये एवरेज ऑपरेशन साइज बढ़ रहा है तो इट मीन्स कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं विद इन अ क्लास, जो मेथड्स हैं जो विद इन अ क्लास, उनको शायद इतना प्रॉपरली जो है डिजाइन नहीं किया गया और दे आर नॉट वेल एलोकेटेड। तो ये हमें हिंट प्रोवाइड करता है टू बेटर डिजाइन। और इसी तरह से सेकंड मैट्रिक जो है ऑपरेशन से रिलेटेड दैट इज ऑपरेशन कम्प्लेक्सिटी। और कम्प्लेक्सिटी मैट्रिक्स फॉर ट्रेडिशनल जो कंपोनेंट्स हैं, कन्वेंशनल जो सॉफ्टवेयर है हमारा, वही मैट्रिक्स यहाँ पे भी अप्लाई होते हैं। कम्प्लेक्सिटी के भी हमने पिछली स्लाइड के अंदर भी मैट्रिक्स को डिस्कस किया। और डेफिनेटली इसको भी हमें क्या करना चाहिए, इट शुड बी एज लो एज पॉसिबल। और फिर इसी तरह से एक और मैट्रिक जो है ऑपरेशन से रिलेटेड दैट इज एवरेज नंबर ऑफ पैरामीटर्स पर ऑपरेशन। और ये भी क्वाइट लॉजिकल जो है एक मैट्रिक है कि अगर नंबर ऑफ पैरामीटर्स बढ़ते हैं तो डेफिनेटली आपकी जो कोलैबोरेशन है दैट बिकम्स कॉम्प्लेक्स। और इस नंबर को भी जो है हमें ट्राई टू मिनिमाइज इट। अब हम बात करते हैं वेब एप्लीकेशन मैट्रिक्स की। वेब एप्लीकेशन पहले भी हमने कहा कि ये जो एप्लीकेशंस हैं वो ट्रेडिशनल जो हमारी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस हैं उससे थोड़ा सा हटके हैं। तो अब उसके अंदर किस तरह के मैट्रिक्स हमारे पास अवेलेबल हैं जिनके थ्रू हम वेब एप्लीकेशन की क्वालिटी को जो है असेस कर सकते हैं। तो अब इस वेब एप्लीकेशन के टॉपिक के अंदर जो मैट्रिक्स डिफरेंट हमारे पास अवेलेबल हैं, पहले हमने डिस्कस करना है इंटरफेस मैट्रिक्स को। कि इंटरफेस की जब हम बात करते हैं वेब एप्लीकेशन की, और हमने पहले भी कहा कि जो इंटरफेस है वेब एप्लीकेशन का दैट इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट। की रोल है इंटरफेस का। यूजर की जो पहला इम्प्रेशन है दैट इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट इन द सक्सेस ऑफ वेब एप्लीकेशन। कि वो यूजर उसको यूज करने जा रहा है फ्यूचर में या नहीं, डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह का इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं। अब उसके अंदर देखें अगेन ये जो मैट्रिक हैं ये इतने हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट मैट्रिक्स नहीं है और बहुत ज़्यादा अथेंटिकेटेड या वैलिडेटेड नहीं है, लेकिन स्टिल हमें कुछ हिंट प्रोवाइड करते हैं। और अगर इनको प्रॉपरली अप्लाई किया जाए तो ना अप्लाई करने से बहुत बेहतर है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो इसी तरह से पहला जो इसके अंदर मैट्रिक है दैट इज लेआउट कम्प्लेक्सिटी। और लेआउट कम्प्लेक्सिटी को किस तरह से देखें, हमें क्या इंडिकेशन मिल रही है, दैट इज नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन्स डिफाइंड फॉर एन इंटरफेस। आपने जो अपने इंटरफेस है उसको कितने स्पेसिफिक और डिस्टिंक्ट रीजन्स के अंदर डिवाइड किया है। जैसे एक सपोज हो सकता है एक पेज हेडर है आपका और उसके ऊपर सिर्फ जो है ना हेडर्स हैं या मेन्यू बार है, और किसी और सपोज कोई आपके पास कोई स्पेसिफिक एक कांस्टेंट एरिया है जिसके अंदर एक ही इमेज डिस्प्ले हो रहा है या मल्टीपल इमेजेस डिस्प्ले हो रहे हैं। कौन सा एरिया है जिसके अंदर आपका मेन जो टेक्स्ट है वो आ रहा है, जो बॉडी है वो आ रही है। तो इस तरह से वो नंबर ऑफ रीजन्स क्या है। और फिर सेकेंड जो मैट्रिक है दैट इज लेआउट रीजन कम्प्लेक्सिटी। कि नंबर ऑफ जो है एवरेज नंबर क्या है डिस्टिंक्ट लिंक्स जो है पर रीजन के। किसी एक स्पेसिफिक, पहले हमने पूरे पेज की बात की, पूरे इंटरफेस की बात की, अब उसके ऊपर जो एक रीजन है हम उसके कॉन्टेक्स्ट में बात करें, उसके ऊपर एवरेज नंबर ऑफ जो है ना लिंक्स क्या है, डिस्टिंक्ट लिंक्स क्या है, कितनी आप उसको कम्प्लेक्स है वो आपका रीजन। थर्ड मैट्रिक इज रिकॉग्निशन कम्प्लेक्सिटी। और रिकॉग्निशन कम्प्लेक्सिटी क्या है, एवरेज नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट आइटम्स द यूजर मस्ट लुक एट बिफोर मेकिंग नेविगेशन और डेटा इनपुट डिसीजन। कि कितना यूजर को रिकॉग्नाइज करने की एफर्ट करना पड़ती है उन आइटम्स को बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन।
और अगर डेफिनेटली अगर रिकग्निशन की एफर्ट ज़्यादा होगी तो ये कोई इतना अच्छा इंटरफेस नहीं होगा। तो ये देखें अगेन कि अगर आप इनको सिस्टमेटिकली फॉलो करें, अपने इंटरफेस के ऊपर अप्लाई करें, तो डेफिनेटली आपको एक अच्छी इनपुट मिलेगी टूवर्ड्स क्वालिटी ऑफ द इंटरफेस। इसके बाद देखें रिकग्निशन टाइम, और रिकग्निशन टाइम इज द एवरेज टाइम normally in seconds that it take a user to select the appropriate action for a given task। यूजर कितना टाइम लेता है टू डिसाइड कि क्या उसने एक्शन परफॉर्म करना है। इसी तरह टाइपिंग एफर्ट, और टाइपिंग एफर्ट इज एवरेज नंबर ऑफ की स्ट्रोक्स रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। कितनी दफ़ा आपको की प्रेस करनी पड़ती है, तो ये भी एक इंडिकेशन है कि आपने कितना इजी जो है इंटरफेस डिज़ाइन किया है। अब हम बात करते हैं माउस पिक एफर्ट, और माउस पिक एफर्ट भी बिल्कुल जो हमने पीछे बात की कीबोर्ड से रिलेटेड जो मेट्रिक है कि नंबर ऑफ की प्रेसेस कितने हैं टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक एक्शन, इसी तरह से एवरेज नंबर ऑफ माउस पिक्स, या आप इसको कह सकते हैं कि क्लिक्स जो है वो कितनी है टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक फंक्शन। इसी तरह से सिलेक्शन कम्प्लेक्सिटी, इट डिफाइंस एवरेज नंबर ऑफ लिंक्स दैट कैन बी सिलेक्टेड पर पेज। और फिर कंटेंट एक्विजिशन टाइम, और कंटेंट एक्विजिशन टाइम क्या है, एवरेज नंबर ऑफ वर्ड्स ऑफ टेक्स्ट पर वेब पेज, कि एक पेज के ऊपर कितनी आपके एवरेज वर्ड्स हैं जिसको यूजर ने रीड करना है, यूजर ने देखना है, तो वो कंटेंट एक्विजिशन टाइम उसे हम एस्टिमेट कर सकते हैं। और मेमोरी लोड एक और इम्पॉर्टेंट जो मेट्रिक है, and it is average number of distinct data item that the user must remember to achieve specific objective। और जितना मेमोरी लोड बढ़ेगा यूजर के लिए, उतने ही उसकी यूजेबिलिटी कह सकते हैं कि कम होती जाएगी, या उस इंटरफेस की जो है जो यूजर के हवाले से जो उसकी एक्सेप्टेंस है वो डिक्रीज होती जाएगी। मेमोरी लोड जो यूजर का है वो कम से कम होना चाहिए। अब हम बात करते हैं एस्थेटिक डिजाइन मैट्रिक्स की। एस्थेटिक डिज़ाइन मैट्रिक्स भी रिलेटेड है इंटरफेस डिज़ाइन के साथ, लेकिन अगेन इसको अलग से कैटेगराइज किया गया है, और इसको ज़्यादा एस्थेटिक की तरफ, एस्थेटिक देखें बड़ी क्वालिटेटिव सी, बड़ी सब्जेक्टिव सी जो है वो कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन समहाउ इन मैट्रिक्स के थ्रू उसको क्वांटिटेटिव वे के अंदर मेजर करने की एक अटेम्प्ट की गई है। तो फर्स्ट जो मेट्रिक है दैट इज वर्ड काउंट, कि जो नंबर ऑफ वर्ड्स हैं दैट अपीयर ऑन अ स्पेसिफिक पेज वो क्या है। और पहले भी कहा था कि रीडेबिलिटी की जो स्पीड जो यूजर की रीडेबिलिटी की है दैट इज स्लोअर ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन एज कंपेयर टू ऑन द पेज। तो अगर ज्यादा हम कंटेंट्स देंगे, वर्ड्स देंगे पेज के ऊपर, अपने इंटरफेस के ऊपर, तो डेफिनेटली यूजर को जो है ये अनाय करेगा, ये इसको डिस्टर्ब करेगा। ठीक है। सेकंड आप देखें मेट्रिक दैट इज बॉडी टेक्स्ट परसेंटेज, एंड व्हाट इज इट, परसेंटेज ऑफ वर्ड्स दैट आर बॉडी वर्सेस डिस्प्ले टेक्स्ट दैट इज हेडर, कि वो जो आपने मेन जो पोर्शन बनाया पेज के ऊपर जहाँ पे एक्चुअल कंटेंट आपका प्रेजेंट हो रहा है, उसकी क्या परसेंटेज है एज कंपेयर टू अदर एरियाज रीजन्स जो पेज की हमने पीछे बात की, तो उसकी क्या परसेंटेज है। अब बात करते हैं एक और मैट्रिक्स दैट इज एम्फसाइज्ड बॉडी टेक्स्ट परसेंटेज, और ये क्या है कि वो जो बॉडी टेक्स्ट है उसके अंदर कितना पोर्शन है दैट इज एम्फसाइज्ड, लाइक उसको अपने बोल्ड कर दिया, कैपिटल कर दिया, इटालिक कर दिया, डिफरेंशिएट किया बाकी टेक्स्ट से, बॉडी टेक्स्ट से, तो वो जो है एक तरह की इंडिकेशन है टूवर्ड्स एस्थेटिक। अगर आप बहुत ज्यादा बोल्ड करेंगे चीजों को, टेक्स्ट को अगर ज्यादा अंडरलाइन करेंगे, तो ये भी कोई अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। एक रीजनेबल लेवल के ऊपर अगर ये इस तरह की फॉर्मेटिंग होगी दैट वुड बी अप्रिशिएटेड, लेकिन अगर वो ओवर हो जाएगी तो फिर वो यूजर के लिए डिफरेंशिएट करना ही मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट जो की मेट्रिक है दैट इज टेक्स्ट क्लस्टर काउंट, एंड इट इज अबाउट टेक्स्ट एरियाज हाईलाइटेड विद कलर बॉर्डर्ड रीजन्स रूल्स आर लिस्ट। अब डिफरेंट जो
आपने टेक्स्ट एरियाज बनाए जिनको डिफरेंट तरह से आपने हाईलाइट किया है, वो कितने हैं, और वो डेफिनेटली इफेक्ट करते हैं आपकी ओवरऑल जो एस्थेटिक है या एस्थेटिक परसेप्शन है आपके इंटरफेस की। इसी तरह से लिंक काउंट एक और आपका एस्थेटिक का मीट्रिक है कि आपने कितने लिंक्स प्रोवाइड किए हैं एक स्पेसिफिक पेज के ऊपर। एक अगेन कि रीजनेबल होने चाहिए। अब देखें, मैंने पहले भी कहा कि ये इट इज़ क्वाइट क्वालिटेटिव और सब्जेक्टिव इन नेचर, लेकिन हम इसको समहाउ क्वांटिफाई करते हैं, और क्वांटिफाई करने से जो है हम एक तरह का एक आइडिया ले रहे हैं, एस्टिमेट कर रहे हैं। तो एक रीजनेबल नंबर जो होगा, कोई हार्ड कोई फिक्स नंबर नहीं हो सकता, डिपेंडिंग ऑन द टेक्स्ट, डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशन डोमेन, एप्लीकेशन, रीजनेबल नंबर ऑफ लिंक्स होने चाहिए पेज के ऊपर। इसी तरह से एक और जो एस्थेटिक का मेट्रिक है दैट इज पेज साइज, और पेज साइज से मुराद इनफैक्ट नंबर ऑफ बाइट्स है, टोटल बाइट्स ऑफ द पेज एज वेल एज एलिमेंट्स, ग्राफिक्स एंड स्टाइल शीट्स, कि वो टोटल उसका साइज क्या है। ये डेफिनेटली ये जो साइज है वो उसके डाउनलोड टाइम के अंदर अफेक्ट करेगा। और फिर एक और मीट्रिक दैट इज ग्राफिक परसेंटेज, और ग्राफिक परसेंटेज क्या है? परसेंटेज ऑफ पेज बाइट्स दैट आर फॉर ग्राफिक्स। टेक्स्ट को अलहदा कर लें और उसके ऊपर जो ग्राफिक्स आपने जो इमेजेस जो प्रेजेंट किए हैं उनका क्या साइज है। और डेफिनेटली अगर ये साइज भी बढ़ जाए, अगर बहुत ज़्यादा ग्राफिक्स आप पेज पे डालेंगे तो यूज़र के एक्सपीरियंस को आप डिस्टर्ब करेंगे, यूज़र एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि पेजेस जो हैं वो डाउनलोड होने में ज़्यादा टाइम लेंगे। एंड सिमिलर मेट्रिक इज ग्राफिक्स काउंट, और ये क्या है कि टोटल नंबर ऑफ ग्राफिक्स कितने हैं उस पेज के ऊपर। और फिर इसी तरह से कलर काउंट, और कलर काउंट जो है क्या नंबर ऑफ कलर्स जो है आपने यूज़ किया है पेज के ऊपर, तो ये भी एक इंडिकेशन है। अगेन एक सेंसिबल अप्रोच के साथ कलर यूज़ होंगे, एक अच्छी स्कीम के साथ। और अगर बहुत ज़्यादा कलरफुल पेज बनाएंगे तो वो भी एस्थेटिकली इतने अच्छे नहीं होते। इसी तरह से एक और काउंट है दैट इज़ अबाउट फॉन्ट, और उसको फॉन्ट काउंट कह रहे हैं। इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ फॉन्ट्स जो है जो एक पेज के ऊपर आपने दिए हैं, उसके अंदर उनके डिफरेंट स्टाइल, उनके साइजेस, उनके और जो फॉर्मेटिंग है बोल्ड, इटैलिक, वो सारी उसके अंदर इंक्लूडेड है। अब हम बात करते हैं कंटेंट मैट्रिक्स की। पहले हमने वेब एप्लीकेशन के जो है इंटरफेस मैट्रिक्स जो है डिस्कस किए, फिर हमने एस्थेटिक मैट्रिक्स की बात की, और अब हम बात कर रहे हैं उसके कंटेंट के हवाले से कि एक्चुअल जो कंटेंट है उसको कैसे जो है समहाउ आप असेस कर सकते हैं। तो जो पहला मैट्रिक है दैट इज पेज वेट, और पेज वेट क्या है? वो जो डाउनलोड टाइम है, एवरेज टाइम रिक्वायर्ड फॉर ए पेज टू डाउनलोड एट डिफरेंट कनेक्शन स्पीड्स। डिफरेंट कनेक्शन स्पीड्स के ऊपर अगर आप इसको देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा जो है हिंट मिलेगा, क्योंकि हमने पहले भी बात की थी वेब एप्लीकेशन क्वालिटी के अंदर, जब हमने कॉन्फ़िगरेशन की भी बात की, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के अंदर, कि डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं क्लाइंट साइड के ऊपर। उसके अंदर एक फैक्टर कनेक्शन स्पीड था, और कनेक्शन स्पीड्स डिफरेंट के साथ आप अपनी वेब एप्लीकेशन की जो डाउनलोड स्पीड है उसको देख सकते हैं कि कितना वो टाइम लेता है। और सेकंड जो आपके पास मेट्रिक है दैट इज पेज कम्प्लेक्सिटी, और पेज कम्प्लेक्सिटी क्या है कि एवरेज नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मीडिया दैट आर यूज्ड ऑन दैट पेज, और इसके अंदर वो टेक्स्ट इंक्लूडेड नहीं है, वो बाकी जो ऑडियो वीडियो इस तरह के जो आपने मीडिया को यूज़ किया है वो इंक्लूड, उसको हमने देखना है, और डेफिनेटली वो भी हमें हिंट प्रोवाइड करते हैं अबाउट द ओवरऑल कम्प्लेक्सिटी ऑफ दैट पेज। इसी तरह से ग्राफिक कम्प्लेक्सिटी है, और ग्राफिक कम्प्लेक्सिटी क्वाइट जो है सिंपल मेट्रिक, स्ट्रेट फॉरवर्ड के जो नंबर ऑफ ग्राफिक्स जो उस पेज के ऊपर है वो जो है हमें बताते हैं ग्राफिक्स कम्प्लेक्सिटी के बारे में। बिल्कुल इसी तरह से ऑडियो कम्प्लेक्सिटी है अबाउट ऑडियो मीडिया पर पेज। फिर वीडियो कम्प्लेक्सिटी है, जो वीडियो कंटेंट्स आपने किसी पेज के ऊपर कितने हैं इसको आपने काउंट करना है। इसी तरह से एनिमेशन कम्प्लेक्सिटी है कि एवरेज नंबर ऑफ एनिमेटेड जो इमेजेस हैं या एनिमेशंस हैं वो क्या है। और फिर इसी तरह से स्कैन्ड इमेज कम्प्लेक्सिटी है कि कितने नंबर ऑफ इमेजेस हैं जो आपने स्कैन करके और इमेज दिए हैं अपने
पेज के ऊपर उस कंटेंट के अंदर। तो ये सारे जो मैट्रिक्स हैं वो आपको कंटेंट के हवाले से गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। अब हम बात करते हैं नेविगेशन मैट्रिक्स की। नेविगेशन मैट्रिक्स जो है आमतौर पे स्टैटिक पेजेस के ऊपर अप्लाई होते हैं, डायनामिक पेजेस के ऊपर हम नेविगेशन मैट्रिक्स को अप्लाई नहीं करते। और इसके अंदर जो एक मैट्रिक है दैट इज पेज लिंकिंग कम्प्लेक्सिटी। और पेज लिंकिंग कम्प्लेक्सिटी जो है अगेन कि नंबर ऑफ लिंक्स पर पेज जो है ये आपकी नेविगेशन को भी बता रहे हैं। ये पीछे भी हमने बात की जब हमने पेज की मेट्रिक के और कंटेंट के मैट्रिक्स के हवाले से बात की, लेकिन सिमिलर जो मेट्रिक है वो नेविगेशन के हवाले से भी हमें हेल्प आउट करता है कि नंबर ऑफ पेजेस नंबर ऑफ लिंक्स कितने हैं एक पेज के ऊपर। और इसी तरह से सेकंड जो मेट्रिक है दैट इज कनेक्टिविटी। और कनेक्टिविटी क्या है? टोटल नंबर ऑफ इंटरनल लिंक्स जो कि गिवन है नॉट इंक्लूडिंग द डायनामिकली जनरेटेड लिंक्स। पहले मैंने कहा कि स्टैटिक पेजेस के ऊपर हैं तो उसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो भी आपके टोटल इंटरनल लिंक्स हैं उस वेब एप्लीकेशन के अंदर डायनामिक लिंक्स को इंक्लूड नहीं करना जो रन टाइम के ऊपर जनरेट हो रहे हैं, दैट इज द कनेक्टिविटी। ये एक मेट्रिक है जो कि नेविगेशन के हवाले से हमें गाइडेंस देता है। और थर्ड जो इसके अंदर की मेट्रिक है दैट इज कनेक्टिविटी डेंसिटी। और कनेक्टिविटी जो है डेंसिटी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? कनेक्टिविटी डिवाइडेड बाय पेज काउंट। तो इससे आपको पता चलेगा कि कितने ज़्यादा अपने वेब एप्लीकेशन के अंदर कितनी सिंपल या कितनी कॉम्प्लेक्स नेविगेशन है। अब हम बात करते हैं सोर्स कोड के हवाले से मैट्रिक्स की कि जो एक्चुअल आपका सोर्स है वहाँ पे किस तरह के मैट्रिक्स हो सकते हैं। और डिफरेंट मैट्रिक्स जो है इसमें भी प्रपोज किए गए हैं। कुछ जेनेरिक मैट्रिक्स यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, कॉमन मैट्रिक्स। द फर्स्ट वन इज देखें N1 दैट इज नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ऑपरेटर्स दैट अपीयर इन अ प्रोग्राम। तो नंबर ऑफ जो डिस्टिंक्ट ऑपरेटर्स हैं उस कोड के अंदर दैट काउंट इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट। और सिमिलरली नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ऑपरेंड्स जो कि किसी भी स्पेसिफिक कंपोनेंट के अंदर प्रोग्राम के अंदर है। तो ये दो नंबर और प्लस इसी तरह से क्या है कि टोटल नंबर ऑफ ऑपरेटर एक्सेस क्या है और टोटल नंबर ऑफ ऑपरेंड एक्सेस क्या है। तो इसके थ्रू जो है आप ओवरऑल प्रोग्राम की लेंथ और उसका वॉल्यूम इज बेसिकली अगेन इन टर्म्स ऑफ मेमोरी, इन टर्म्स ऑफ बाइट्स जो है, तो लेंथ उसकी कैलकुलेट कर सकते हैं और उसका वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये आपको हिंट प्रोवाइड करते हैं कि कितना सिंपल या कितना लेंथी या कितना कॉम्प्लेक्स जो है आपका प्रोग्राम है। और जो लेंथ और वॉल्यूम को जो कैलकुलेट करने के फार्मूलाज हैं वो इस स्लाइड के ऊपर गिवन है। अब तक जो हमने बात की उसके अंदर हमने रिक्वायरमेंट्स मॉडल के ऊपर मैट्रिक्स को देखा। उसके अंदर हमने डिज़ाइन जो है डिज़ाइन के मैट्रिक्स देखे डिज़ाइन मॉडल के लिए। फिर हमने जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्पेसिफिक मैट्रिक्स देखे। हमने ट्रेडिशनल जो कंपोनेंट्स हैं उनके लिए मैट्रिक्स को देखा। उसके बाद हमने वेब एप्लीकेशन की बात की। अब हम बात कर रहे हैं जो टेस्टिंग के मैट्रिक्स है कि टेस्टिंग टाइम के ऊपर जो है किस तरह के मैट्रिक्स हमें अवेलेबल हैं। इनफैक्ट जो डिज़ाइन के मैट्रिक्स हैं वो डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, डिज़ाइन मॉडल्स के ऊपर अप्लाई होते हैं, लेकिन उसी तरह के मैट्रिक्स या वही मैट्रिक्स हमें टेस्टिंग टाइम के ऊपर भी हेल्प करते हैं। अब उसके अंदर देखें जो ये मैट्रिक अभी गिवन है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेस्टिंग के लिए, तो इसको हमने पहले भी डिस्कस किया, दैट इज लैक ऑफ कोहेजन इन मेथड्स। और हमने कहा कि इफ दिस नंबर इज हाई देन डेफिनेटली टेस्टिंग एफर्ट इज इंक्रीज्ड, we need more testing effort to test that specific module or that specific class। तो ये अब नंबर जो है वहाँ पे डिज़ाइन टाइम के ऊपर भी हमें हेल्प आउट करता है और सेम जो मीट्रिक है ये टेस्ट टाइम के ऊपर भी हमें हेल्प आउट करता है। इसी तरह से एक और मीट्रिक देखें दैट इज परसेंट पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड। तो अब जो पब्लिक और प्रोटेक्टेड क्लास एट्रीब्यूट्स हैं वो क्या परसेंटेज है वो भी हमें हेल्प आउट करता है टू टेस्ट दैट स्पेसिफिक क्लास और ऑब्जेक्ट। तो अब ये हाई वैल्यू अगर होगी परसेंट पब्लिक प्रोटेक्टेड के लिए तो डेफिनेटली इसके जो वो साइड इफेक्ट्स होंगे वो ज़्यादा होंगे और इसको हमें ज़्यादा थॉरोली टेस्ट करना होगा।
तो ये मेट्रिक भी हमें हेल्प आउट करता है टेस्टिंग टाइम के ऊपर। इसी तरह से पब्लिक एक्सेस टू डेटा मेंबर्स, और ये क्या है कि नंबर ऑफ क्लास और मेथड्स दैट एक्सेस एंड अदर क्लास एट्रीब्यूट्स, और डेफिनेटली ये नंबर भी जो है ये भी मिनिमम होना चाहिए, और अगर ये ज़्यादा होगा तो इट मीन्स कि जो इनकैप्सुलेशन का जो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है और एक जो गाइडेंस है उसको हम वायलेट कर रहे हैं। और इसके थ्रू भी अगेन अगर जितनी जो है नंबर ऑफ क्लासेस की एक्सेस ज़्यादा होगी टू अदर एट्रीब्यूट्स, टू अदर क्लास एट्रीब्यूट्स, तो हमें उतनी ज़्यादा एफर्ट इसके अंदर टेस्टिंग की रिक्वायर्ड होगी। और टेस्टिंग के टाइम के ऊपर ये हमें अगेन इंडिकेशन देते हैं कि आपका जो कोड है, जो आपका प्रोग्राम है, जो आपकी क्लासेस हैं, जिस तरह से आपने उसको डिज़ाइन किया है वो कितनी अच्छी या बुरी है। एक और मीट्रिक हमारे पास दैट इज नंबर ऑफ रूट क्लासेस, और ये क्या बताता है कि कितने नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट क्लास हायरार्कीज हैं। और ये डिफरेंट जो क्लास हायरार्कीज हैं डेफिनेटली इन हर एक के लिए हमें टेस्ट केसेस बनाने पड़ेंगे, टेस्ट जो है टेस्टिंग करनी पड़ेगी। तो अब जैसे जैसे ये नंबर बढ़ेगा हमारी टेस्टिंग एफर्ट बढ़ेगी, और अगेन ये हमें इंडिकेशन दे रहा है कि डिज़ाइन कम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है। और फिर इसी तरह से एक और जो मीट्रिक है दैट इज फैन इन, और फैन इन क्या है कि मल्टीपल जो है आपकी इनहेरिटेंस है ये उसको डिस्क्राइब कर रहा है या इंडिकेट कर रहा है, और अगर ये नंबर जो है 1 से बढ़ता है तो ये कोई अच्छा नंबर नहीं है, हमें इसको अवॉइड करना चाहिए। और फिर इसी तरह से नंबर ऑफ चिल्ड्रन और डेप्थ ऑफ इनहेरिटेंस ट्री जो है अगेन ये भी इनहेरिटेंस से रिलेटेड है। जैसे जैसे आप ये स्पेक्ट्रम बढ़ाते जाएंगे इनहेरिटेंस वाला, तो वैसे वैसे आपकी डिज़ाइन कम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी, और डिज़ाइन कम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी तो डेफिनेटली आपको ज़्यादा टेस्ट केसेस जो हैं ताकि थॉरली आप वो सारी पॉसिबिलिटीज़ को देख सकें वो डेवलप करने पड़ेंगे, और आपकी टेस्टिंग एफर्ट जो है वो बढ़ती चली जाएगी। अब हम बात करते हैं कुछ मैट्रिक्स जो कि कॉमन मैट्रिक्स हैं इन केस ऑफ मेंटेनेंस, और या हम यूँ कह सकते हैं मेंटेनेंस फेज के ऊपर आफ्टर डिप्लॉयमेंट जो है किस तरह के मैट्रिक्स हमें अवेलेबल हैं। और हमने अगेन स्टार्ट किया था रिक्वायरमेंट्स से, रिक्वायरमेंट्स मॉडल से, और अब हम बात कर रहे हैं मेंटेनेंस फेज की। और इसके अंदर देखें जो मैट्रिक्स हैं, द फर्स्ट वन इज एमटी। एमटी इज एक्चुअली द नंबर ऑफ मॉड्यूल्स इन द करंट रिलीज, वो जो स्पेसिफिक कंपोनेंट है, प्रोडक्ट है, उसकी जो है कितने नंबर ऑफ मॉड्यूल्स हैं इन टोटल। और फिर इसी तरह से FC is actually the number of modules in the current release that has been changed, कितने टोटल मॉड्यूल्स में से ऐसे मॉड्यूल्स हैं जिनको चेंज किया है। और फिर इसी तरह से FA है, ये हमें वो नंबर ऑफ मॉड्यूल्स बताता है जो कि हमने नए ऐड किए हैं उस स्पेसिफिक रिलीज के अंदर। पहले वाली जो हमने FC कहा दैट इज नंबर ऑफ मॉड्यूल्स दैट आर अपडेटेड, आर चेंज्ड, और ये क्या है नए मॉड्यूल्स कितने ऐड किए हैं। और फिर इसी तरह से FD, और ये वो नंबर है जो कि हमें बताता है कि कितने आपने मॉड्यूल्स को डिलीट कर दिया है जो कि प्रीवियस रिलीज के अंदर थे, और अब जो नई रिलीज है आपकी, नया जो वर्जन है उसके अंदर नहीं है। और फिर इन डिफरेंट जो मैट्रिक्स जो हमने अभी डिस्कस किए हैं इनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर मैच्योरिटी इंडेक्स जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये स्क्रीन के ऊपर गिवन है फार्मूला, इसके थ्रू आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपकी प्रोडक्ट की जो मैच्योरिटी है वो क्या है, इंडेक्स क्या है उसका। एंड इफ इट इज 1 देन इट इंडिकेट्स दैट योर प्रोडक्ट इज नाउ स्टेबल। तो प्रोडक्ट स्टेबिलिटी को जो है ये रिप्रेजेंट करता है। और ये एक देखें बड़े सिंपल से मैट्रिक्स हैं लेकिन हमें हेल्प आउट करते हैं टू असेस आवर प्रोडक्ट क्वालिटी इन क्वांटिटेटिव वे। आज के लेक्चर को समराइज करते हैं। आज का लेक्चर जो है लास्ट लेक्चर की कंटिन्यूएशन थी। हमने प्रोडक्ट मैट्रिक्स का टॉपिक स्टार्ट किया था कि अगर हमने क्वालिटी को जो है असेस करना है तो हमारे पास कुछ क्वांटिटेटिव मैट्रिक्स होने चाहिए, कुछ मेजर्स होने चाहिए, और उसके अंदर हमने रिक्वायरमेंट्स से बात स्टार्ट की थी। और आज के लेक्चर में हमने जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन है
उसी को हमने आगे डिटेल में देखा। उसमें सबसे पहले जो हमने मैट्रिक्स डिस्कस किए वो क्लास ओरिएंटेड मैट्रिक्स थे, और क्लास ओरिएंटेड मैट्रिक्स के अंदर हमने कुछ कॉमन मैट्रिक्स को देखा। द फर्स्ट वन वाज वेटेड मेथड्स पर क्लास, और इसके अंदर हमने बात की कि कितने जो नंबर ऑफ मेथड्स हैं और वो नंबर ऑफ मेथड्स जो है उनकी क्या कम्प्लेक्सिटी है, और वो नंबर जो है हमें एक इंडिकेशन देता है अबाउट दिस मैट्रिक, और इस मैट्रिक के थ्रू जो है आप क्लास की डिज़ाइन कम्प्लेक्सिटी को जो है वो मेजर कर सकते हैं। और अपेरेंटली ये नंबर जो है ये हमें बड़ा सिंपल लगता है to count the number of methods, लेकिन still we need some consistent approach to count it, and then we can effectively use this metric. और फिर इसी तरह से हमने बात की डेप्थ ऑफ द इनहेरिटेंस ट्री की, और डेप्थ ऑफ इनहेरिटेंस ट्री के अंदर हमने कहा कि रूट नोड से किसी स्पेसिफिक जो हमारा जो चाइल्ड नोड है वहाँ तक जो है जो लीफ नोड जिसे कह लें आप, क्या लेंथ है वो हमें डेप्थ जो है वो बताता है। और ये डेप्थ जो है इंडिकेट करती है अगेन डिज़ाइन कम्प्लेक्सिटी को। इट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ रीयूजेबिलिटी, कि रीयूजेबिलिटी तो बढ़ रही है, नंबर ऑफ मॉड्यूल्स जो है वो आप यूज़ कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ इसकी डिज़ाइन कम्प्लेक्सिटी भी बढ़ रही है, और डेफिनेटली इसको कोड करने की और इसको टेस्ट करने की इस तरह की क्लास को उसकी एफर्ट भी बढ़ जाएगी। फिर हमने नंबर ऑफ चिल्ड्रन की बात की, और नंबर ऑफ चिल्ड्रन के अंदर हमने कहा कि जो चिल्ड्रन इज़ बेसिकली द नंबर ऑफ इमीडिएट सबऑर्डिनेट क्लासेस, और इसको भी जब हम देखते हैं तो ये अगेन हमें अगर ये नंबर बढ़ता है तो डिज़ाइन कम्प्लेक्सिटी बढ़ती है और हमारी एफर्ट बढ़ती है। और फिर इसी तरह से एक और की मैट्रिक दैट इज कपलिंग। कपलिंग को हमने पहले भी डिस्कस किया था। कपलिंग इज अबाउट कोलैबोरेशन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, और जितनी ये कपलिंग ज़्यादा होगी उतना ही आपका जो डिज़ाइन कम्प्लेक्सिटी है वो ज़्यादा होगी, उसके अंदर मॉडिफिकेशन जो है वो मुश्किल होगी, और टेस्टिंग की एफर्ट भी उसी तरह से इंक्रीज़ कर जाएगी। और इसी तरह से फिर हमने रिस्पांस फॉर क्लास की बात की कि किस तरह से मेथड्स जो है, कितने नंबर ऑफ मेथड्स जो है वो उसके साथ डील कर रहे हैं जब कोई मैसेज इनिशिएट होता है। और फिर लैक ऑफ कोहेजन की बात की, और लैक ऑफ कोहेजन के अंदर अगेन कि आप कितने कंसिस्टेंट हैं, कितना एटॉमिक नेचर है आपकी क्लास या ऑब्जेक्ट की, और अगर ये नंबर भी जो है बढ़ेगा तो इट मीन्स कि आपका जो डिज़ाइन है वो इतना एक्यूरेट या इतना अप्रोप्रिएट नहीं है, और इसके लिए भी टेस्टिंग की एफर्ट जो है वो इंक्रीज होगी। इसके बाद हमने बात की कंपोनेंट लेवल डिज़ाइन मैट्रिक्स की। ट्रेडिशनल जो हमारे पास कंपोनेंट्स हैं, ट्रेडिशनल जो सॉफ्टवेयर हैं, वहाँ पे हम किस तरह के मैट्रिक्स को यूज़ कर सकते हैं, और इनको 3 C's भी कहा जाता है, कोहेजन, कपलिंग एंड कम्प्लेक्सिटी मैट्रिक्स। तो कोहेजन की जब हमने बात की तो कोहेजन के से रिलेटेड क्या है कि नंबर ऑफ मेथड्स क्या है, नंबर ऑफ जो है वो ऑपरेशंस क्या है, किस तरह से जो है आप ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी को परफॉर्म कर रहे हैं, और ये भी अगेन हमें इंडिकेट करते हैं डिज़ाइन कम्प्लेक्सिटी के हवाले से। और कपलिंग की बात की कि कितने जो नंबर ऑफ पैरामीटर्स हैं, किस तरह से एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन हो रही है डिफरेंट कंपोनेंट्स की, और जितनी ये कपलिंग बढ़ेगी उतने ही जो है डिज़ाइन कम्प्लेक्स होगा, और उसको कोड करने की एफर्ट, उसको टेस्ट करने की एफर्ट वो बढ़ेगी। एंड सिमिलरली वी डिस्कस्ड अबाउट द कम्प्लेक्सिटी, और कम्प्लेक्सिटी के अंदर हमने कहा कि जो इन जनरल हमारे पास एक बहुत कॉमन जो मेट्रिक है दैट इज साइक्लोमेट्रिक कम्प्लेक्सिटी, जो कि हमें बताता है अबाउट इंडिपेंडेंट लॉजिकल पास इन स्पेसिफिक कंपोनेंट, और वो हेल्प आउट करता है, हमें बताता है कि कितना आपका कंपोनेंट कम्प्लेक्स है और कितनी उसके लिए डिज़ाइन एफर्ट रिक्वायर्ड होगी। और अगेन कम्प्लेक्सिटी को मेजर करने के लिए साइक्लोमेट्रिक कम्प्लेक्सिटी ही की डिफरेंट वेरिएशंस हैं, डिफरेंट मैट्रिक्स अवेलेबल हैं, और उनके थ्रू हम कम्प्लेक्सिटी को मेजर कर सकते हैं। और फिर इसके बाद हमने बात की ऑपरेशन ओरिएंटेड मैट्रिक्स की,
या यूं कहना चाहिए कि मेथड्स ओरिएंटेड मैट्रिक्स की। और उसके अंदर हमने देखा कि एक एवरेज ऑपरेशन साइज मैट्रिक है हमारे पास, इसी तरह से और जो एवरेज नंबर ऑफ पैरामीटर्स पर ऑपरेशन किया है। डिफरेंट मेथड्स के जो है अगर देखें नंबर ऑफ पैरामीटर्स बढ़ेंगे तो डेफिनेटली ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि डिज़ाइन कम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, या यूं कहना चाहिए कि जो कपलिंग है वो इंक्रीज करेगी, और जब कपलिंग इंक्रीज करेगी तो डेफिनेटली रीयूज जो है वो कम होगा और टेस्टिंग की एफर्ट जो है वो इंक्रीज होगी। फिर हमने बात स्टार्ट की वेब एप्लीकेशन की, और वेब एप्लीकेशन के अंदर जो डिफरेंस है दूसरे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन से वो ये है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फोकस है कंटेंट के ऊपर, इंटरफेस के ऊपर और एस्थेटिक के ऊपर। इसके अंदर डिफरेंट मैट्रिक्स को हमने डिस्कस किया। फर्स्ट कैटेगरी या टाइप ऑफ मैट्रिक्स वाज इंटरफेस मैट्रिक्स। इंटरफेस मैट्रिक्स के अंदर हमने बात की कि कैसे जो है जैसे लेट्स से कि नंबर ऑफ स्पेसिफिक या डिस्टिंक्ट रीजन्स ऑफ वन सिंगल पेज, ठीक है, और वो रीजन्स जो है नंबर ऑफ रीजन्स जो है वो हमें बताते हैं उसके इंटरफेस के बारे में कि वो कितना कॉम्प्लेक्स है। और फिर इसी तरह से एक स्पेसिफिक जो रीजन है उसके अंदर कितना कुछ जो है वो टेक्स्ट है, या कितने नंबर ऑफ लिंक्स हैं, तो या कितना जो एक्चुअल जो आपकी बॉडी जो है जहाँ पे एक्चुअल टेक्स्ट है वो कितना परसेंटेज है एज कंपेयर टू अदर रीजन्स। और ये सारे जो इस तरह के मैट्रिक्स हैं वो हमें इंटरफेस के हवाले से गाइड करते हैं। और इसी तरह से मिलते जुलते जो मैट्रिक्स हैं वो हमें गाइड करते हैं अबाउट एस्थेटिक। और एस्थेटिक जो है वो क्वाइट सब्जेक्टिव इन नेचर, लेकिन अगेन इसी तरह से मिलते जुलते मैट्रिक्स, जैसे अगर हम ये कहें कि क्या नंबर ऑफ कलर्स हैं जो कि पेज के ऊपर यूज़ किए गए हैं, क्या नंबर ऑफ ग्राफिक्स है जो कि यूज़ किया गया है, क्या जो है नंबर ऑफ फ़ॉन्ट्स है जो उसके क्या स्टाइल है, क्या जो उसका साइज़ है, बोल्ड है, इटैलिक है, इस तरह के जो डिफरेंट जो उसके ऑप्शंस हैं वो कितने यूज़ किए गए। तो ये सारी जो इंडिकेशन है, लिंक्स भी, इवन जो नंबर ऑफ लिंक्स हैं पर पेज, ये सारे डिफरेंट मैट्रिक्स जो है वो समहाउ आपको एस्थेटिक के बारे में इंडिकेट करते हैं कि आपके यूजर जो है वो किस तरह से इसको परसीव करेगा। फिर हमने बात की नेविगेशन मैट्रिक्स की, और नेविगेशन मैट्रिक्स जो है वो नेविगेशन से रिलेटेड है, लिंक्स से रिलेटेड है। और इसके अंदर हमने कहा कि एक सिंगल पेज के ऊपर जो है नंबर ऑफ लिंक्स कितने हैं, इसके थ्रू हम नेविगेशन के जो है कम्प्लेक्सिटी को देखते हैं या उसको असेस करते हैं कि कितनी सिंपल है। और फिर इसी तरह से टोटल नंबर ऑफ लिंक्स देखते हैं उस वेब एप्लीकेशन के। और फिर कनेक्टिविटी डेंसिटी जो है उसको भी देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ जो लिंक्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पेजेस। तो ये आपको नेविगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ओवरऑल आपको एक पिक्चर प्रेजेंट करती है। और फिर इसी तरह से हमने बात की सोर्स कोड मैट्रिक्स की, और सोर्स कोड लेवल के ऊपर हमने कहा कि डिफरेंट तरह की जो बेसिक जो कंपोनेंट्स हैं या यूनिट्स हैं उनके थ्रू हम सोर्स कोड को असेस कर सकते हैं। और उसके अंदर हमने ऑपरेटर की और ऑपरेंड की बात की कि कितने नंबर ऑफ ऑपरेटर्स हैं, कितने नंबर ऑफ ऑपरेंड्स हैं, और इस तरह के जो हमारे पास मैट्रिक्स हैं उनके थ्रू हम सोर्स कोड की क्वालिटी को असेस कर सकते हैं। और उसके बाद फिर हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेस्टिंग की बात की। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेस्टिंग के अंदर हमने कहा कि जो डिफरेंट मैट्रिक्स जो है जो कि डिज़ाइन टाइम के ऊपर हमें हेल्प आउट करते हैं डिज़ाइन की कम्प्लेक्सिटी को मेजर करने के लिए, वही मैट्रिक्स, उसी तरह के मैट्रिक्स जो है वो हमें टेस्टिंग टाइम के ऊपर भी हेल्प आउट करते हैं। अगेन जैसे देखें डेप्थ ऑफ इनहेरिटेंस ट्री है, ये ऐसा मैट्रिक है जो कि हमें डिज़ाइन टाइम के ऊपर भी हेल्प आउट करता है। और अगर हम टेस्टिंग की बात करें तो एक क्लास को जब हमने टेस्ट करना है या मल्टीपल जो रिलेटेड क्लासेस हैं उनको देखना है, तो उसके अंदर इनहेरिटेंस जितनी ज़्यादा होगी, डेप्थ जितनी ज़्यादा होगी,
उसी तरह से हमें डिफरेंट टेस्ट केसेस, डिफरेंट टेस्ट सिनेरियोज जो है वो जनरेट करने होंगे और फिर उसको टेस्ट करना होगा। तो इसका मतलब है कि एफर्ट जो है हमारी टेस्टिंग की वो बढ़ जाएगी। इसी तरह से नंबर ऑफ चिल्ड्रन का जो मीट्रिक है, ये भी टेस्टिंग की एफर्ट को जो है हमें बढ़ा देगा। अगर नंबर ऑफ चिल्ड्रन बढ़ेंगे और टेस्ट केसेस ज़्यादा बनाने पड़ेंगे और थॉरो जो है टेस्टिंग करनी पड़ेगी, उसके साइड इफ़ेक्ट्स देखने पड़ेंगे। कपलिंग के केस के अंदर जितनी कपलिंग ज़्यादा होगी, हमें उतना ज़्यादा जो है थॉरो टेस्टिंग जो है या टेस्ट केसेस चाहिए होंगे और डेफिनेटली ये टेस्टिंग की एफर्ट को बढ़ाएगा। और फिर इसी तरह से हमने मेंटेनेंस के जो फेज है, जो लेवल है, उसके ऊपर क्या मैट्रिक्स हो सकते हैं। हमने बात अपनी स्टार्ट की थी पिछले लेक्चर में रिक्वायरमेंट्स मॉडल से कि रिक्वायरमेंट्स मॉडल के ऊपर क्या मैट्रिक्स हो सकते हैं। फिर हमने डिज़ाइन मॉडल की बात की, फिर डिज़ाइन के अंदर हमने स्पेसिफिक हुए और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात की और कन्वेंशनल कंपोनेंट्स की बात की। उसके बाद फिर हमने वेब एप्लीकेशन के डिज़ाइन के हवाले से जो है डिफरेंट मैट्रिक्स को डिस्कस किया। फिर हमने सोर्स कोड लेवल की बात की और आखिर में हमने बात की कि मेंटेनेंस जब डिप्लॉय हो जाती है प्रोडक्ट, तो फिर हमारे पास किस तरह के मैट्रिक्स हैं। और यहाँ पे भी बड़े सिंपल से मैट्रिक्स हैं जिसके थ्रू हम जो सॉफ्टवेयर मैच्योरिटी है वो एक कैलकुलेट कर सकते हैं समहाउ। और इसमें हमने कहा कि अगर लेट्स से प्रोडक्ट को हमने मेंटेनेंस फेज के ऊपर हमारे पास मैट्रिक क्या है एवेलुएट करने के लिए प्रोडक्ट को, कि कितने टोटल नंबर ऑफ मॉड्यूल्स हैं प्रोडक्ट में, कितने नंबर ऑफ मॉड्यूल्स जो हैं उसको हमने अपडेट किया है, चेंज किया है, कितने नंबर ऑफ मॉड्यूल्स हैं जो नए ऐड किए हैं, जो पिछली रिलीज के अंदर नहीं थे और अब इस करंट रिलीज में है। और फिर इसी तरह से कितने नंबर ऑफ मॉड्यूल्स हैं जिसको हमने डिलीट कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया, प्रीवियस रिलीज में अवेलेबल थे और अब न्यू रिलीज के अंदर वो नहीं है। तो इसके थ्रू जो है हम सॉफ्टवेयर मैच्योरिटी इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। और हमने कहा है कि इफ दिस नंबर इज 1 then it indicates that your product is going towards product stability। तो product stability का फैक्टर इसमें आ रहा है। इंशाल्लाह अगले जो लेक्चर में आपसे दोबारा बात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।